Hello everyone, welcome to the lecture series of Design and Analysis of Algorithms. In today's video, we'll learn about the incrementing binary counter example for the aggregate analysis. So let's begin. Now we have seen one example in the aggregate analysis, that is using the stack example. Now let's see what is incrementing binary counter. So binary counter means अगर मुझे कोई counter बनाना है that is used to increment or counting bits from 0 to up to any certain value. Like for example, अगर हमें कोई k bit binary counter बनाना है, let's say k bit binary counter. So k bit binary counter बनाने के लिए हमने काउंटर की बिट्स को स्टोर किया इन एन एरे स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडेक्स 0 टू k-1. लेट्स से अगर मुझे 4 बिट बाइनरी काउंटर बनाना है तो एरे के इंडेक्सेस कहां से होंगे? फ्रॉम 0 टू 3. ठीक है, इसको एग्जांपल से देख लेते हैं. सपोज ये हमारा 4 बिट बाइनरी काउंटर है. दिस इज A0, दिस बिट इज स्टोर्ड इन A1, दिस इज स्टोर्ड इन A2 and this is stored in A3. So basically the lowest order bit of the counter will be stored in A0 and the highest order bit will be stored in A k-1 depending whatever be the value of k. Then this is 0, this is 1, 2, 0, 0, 1, 1, this is 3, 0, 1, 0, 0, this is 4, 0, 1, 0, 1, this is 5, 0, 1, 1, 0, this is 6, 0, 1, 1, this is 7 and 1, 0, 0, this is 8. Now हमारा जो भी बाइनरी नंबर है वो स्टोर्ड है इस एरे में जिसकी लोवेस्ट ऑर्डर बिट स्टोर्ड है इन A0 एंड हाईएस्ट ऑर्डर बिट इज स्टोर्ड इन A k-1. So here the value of k is 4. This is a 4-bit binary counter. Now let's see that how do we count from 0 up to a certain value using the incrementing binary counter. So let's see the pseudocode. So now this is the pseudocode. Let's see how it works. So initially I is equals to 0. So what is a dot length? A dot length is equivalent to k. Whatever be the value of k, that is the length of the array. So while the value of I is less than a dot length and जब तक a I पे जो value है वो equal to 1 है, then we will enter the loop. So start करते हैं पहले. This is for I equals to 0, I equals to 1, I equals to 2, I equals to 3. Now for I equals to 0. 0 is less than a dot length, yes, and a of 0 पे जो वैल्यू है वो क्या है? a of 0 पे जो वैल्यू है वो equal to 0 है. So while loop में हम enter नहीं करेंगे, condition is not satisfied, we come here, 0 is less than 4, yes, so a of 0 पे हम कर देंगे 1. So a of 0 पे क्या हो गया? 1 हो गया. So now 0 is incremented to 1. Now let's see how it increments to 2. I is equals to 0. 0 is less than 4, yes. a of 0 पे जो वैल्यू है, a of 0 पे अब क्या वैल्यू है करेंटली? a of 0 पे वैल्यू है 1. कंडीशन सेटिस्फाइड. हमने एंटर किया while लूप में. a of 0 क्या है? a of 0 को हम कर देंगे 0. So a of 0 पे हमने कर दिया इस वैल्यू को चेंज करके 0 एंड i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया. i की वैल्यू हो गई अब 1. अगेन हमने while लूप में एंटर किया. 1 is less than 4 एंड a of 1 पे जो वैल्यू है क्या वो equal to 1 है, बट a of 1 पे जो वैल्यू है वो तो 0 है. तो हमने while लूप में एंटर नहीं किया, हम नेक्स्ट स्टेज पे आ गए. 1 is less than a dot length, yes, so a of 1 पे कर दो 1. So a of 1 पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. So this is the next value 0, 0, 1, 0. So 1 इंक्रीमेंट हो गया अब 2 पे. Similarly, let's see, अब अगर हमें इसे इंक्रीमेंट करना है to 3. So I की क्या वैल्यू है? 0, 0 less than 4, yes, and a of 0 पे जो वैल्यू है equal to 1 है. a of 0 पे जो वैल्यू है वो तो 0 है. So while loop की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो गई, हम सेटिस्फाइड नहीं हुई, हमने एग्जिट कर लिया इससे. 0 is less than a dot length, yes, so a of 0 पे वैल्यू कर दो 1. So इस a of 0 पे हमने कर दिया 1, so ये बन गया 1 और 2 अब इंक्रीमेंट हो गया 2, 3. Similarly, let's see for 4 also.
I is equal to 0 while 0 is less than 4 and a of I पे जो वैल्यू that is a of 0 पे जो वैल्यू क्या वो इक्वल टू 1 है. yes, so a of I पे जो वैल्यू है that is a of 0 पे उसको 0 कर दो. इस वैल्यू को हमने चेंज कर दिया टू 0. देन I की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई. अगेन 1 इज लेस देन 4. yes, एंड a of 1 पे जो वैल्यू है वो इक्वल टू 1 है. yes, a of 1 पे जो वैल्यू है वो इक्वल टू 1 है विच इज दिस वैल्यू. सो a of 1 की वैल्यू को 0 कर दो. इसको हमने 0 कर दिया एंड I की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो. I की वैल्यू अब हो गई 2. 2 इज लेस देन 4. yes, एंड a of 2 पे जो वैल्यू है क्या वो इक्वल टू 1 है. नो, a of 2 पे वैल्यू क्या है 0 है. सो हमने एग्जिट कर लिया इससे. इफ लूप पे आए हम 2 इज लेस देन a डॉट लेंथ. yes, so a of 2 की जो वैल्यू है उसको 1 कर दो. सो इस a of 2 की वैल्यू को हमने कर दिया 1. सो नाउ 3 गेट्स इंक्रीमेंटेड टू 4 एंड सो ऑन इट कंटिन्यूज डिपेंडिंग कि हमें किस वैल्यू तक काउंट करना है. नाउ लेट्स सी इस इंक्रीमेंट ऑपरेशन में हमें कितना टाइम लगा या हर एक इंक्रीमेंट ऑपरेशन की हमारी कितनी कॉस्ट है. सो बेसिकली कॉस्ट ऑफ ईच इंक्रीमेंट ऑपरेशन cost of each increment operation is equal to the number of bits flipped. जितनी बिट्स हमने फ्लिप करी एक इंक्रीमेंट ऑपरेशन में वही हमारी कॉस्ट हो गई इंक्रीमेंट ऑपरेशन की. सो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बिट्स फ्लिप्ड. सो साइमल्टेनियसली लेट्स सी दी कॉस्ट ऑल्सो नाउ फॉर हर एक इंक्रीमेंट ऑपरेशन में हमारी कितनी कॉस्ट लगी. सबसे पहले हमने स्टार्ट किया 0 से. तो जब वैल्यू 0 है तो कॉस्ट क्या है 0 है. अब 0 से जब हम 1 पे गए तो कितनी बिट्स फ्लिप हुई. एक ही बिट फ्लिप हुई. तो कॉस्ट कितनी हो गई इंक्रीमेंट ऑपरेशन की 1 हो गई. 1 से जब हम 2 पे गए तो 1 तक तो मेरी कॉस्ट 1 है ही. अब 1 से 2 पे जाने में कितनी बिट्स फ्लिप हुई. एक ये वाली बिट फ्लिप हुई और ये वाली बिट फ्लिप हुई. 2 बिट्स फ्लिप हुई. सो 2 तक जाने 2 के लिए तो 2 बिट्स फ्लिप हुई और 1 तक आने की कॉस्ट कितनी थी 1 थी. सो 1 प्लस 2 कितनी हो गई 3 हो गई. सो बेसिकली 2 के लिए बिट्स तो 2 ही फ्लिप हुई बट 2 तक पहुंचने के लिए हम ऑलरेडी कितनी कॉस्ट पे कर चुके हैं अब तक 1 कॉस्ट पे कर चुके हैं. सो वो कॉस्ट भी तो एडिशन होगी इसके अंदर. सो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 3 हो गई. अब जब हम 2 से 3 तक गए 2 तक की कॉस्ट तो कितनी है हमने 2 कॉस्ट हमें पे करनी है बिट्स को इंक्रीमेंट करने के लिए. अब 2 से जब हम 3 पे गए तो एक यही वाली बिट फ्लिप हुई. बाकी तो दोनों बिट्स एज इट इज है. सो 3 प्लस 1 एक ही बिट फ्लिप हुई है तो कितनी कॉस्ट हो गई 4 हो गई. नाउ जब हम 3 से 4 पे गए सो 3 तक पहुंचने के लिए हमने कितनी कॉस्ट दी अब तक 4 कॉस्ट दी है. अब 3 से 4 पे जाने के लिए कितनी बिट्स फ्लिप हुई 1 से ये 0 हो गई एक बिट फ्लिप हुई. 1 से ये भी 0 हो गई एक बिट फ्लिप हुई और 0 से 1 तो टोटल 3 बिट्स फ्लिप हुई. सो 4 प्लस 3 कितनी कॉस्ट हमें पे करनी है 7 कॉस्ट हमें पे करनी है. अब 4 से जब हम 5 तक गए 4 तक पहुंचने के लिए 7 कॉस्ट हम ऑलरेडी दे चुके हैं क्योंकि टोटल 7 बिट्स अब तक फ्लिप हुई हैं. नाउ 4 से 5 तक जाने के लिए 0 से ये 1 हुई एक बिट फ्लिप हुई. 0 का 0 ही रहा 1 का 1 ही रहा 0 का 0 ही रहा तो एक ही बिट फ्लिप हुई. तो 7 प्लस 1 कितनी कॉस्ट हो गई 8. नाउ 5 से जब हम 6 पे गए तो 1 से 0 हो गई एक बिट फ्लिप हुई. 0 से 1 हो गई 2 बिट फ्लिप हुई 1 का 1 ही रहा तो टोटल 2 बिट्स फ्लिप हुई. 8 प्लस 2 कितनी कॉस्ट हो गई 10 कॉस्ट हो गई. 6 से जब हम 7 पे गए 6 तक हमने 10 कॉस्ट अब तक दी है. 6 से 7 पे जाने के लिए एक ये बिट फ्लिप हुई ये एज इट इज ही रही ये एज इट इज ही रही ये एज इट इज ही रही. सो 10 प्लस 1 कितनी कॉस्ट हो गई 11 कॉस्ट हो गई. 7 से जब हमें 8 पे जाना है एक ये बिट फ्लिप हुई ये बिट फ्लिप हुई ये बिट फ्लिप हुई ये बिट फ्लिप हुई टोटल 4 बिट्स फ्लिप हुई. सो 11 प्लस 4 कॉस्ट कितनी हो गई 15 हो गई. सो बेसिकली 0 से 8 तक जब हमने इंक्रीमेंट किया सो टोटल कॉस्ट हमने कितनी दी है 15 दी है. सो बेसिकली कैन वी से टोटल कॉस्ट इज ऑलवेज लेस देन twice the total number of increment operations. So basically हमने कितने इंक्रीमेंट ऑपरेशंस करे हैं यहाँ पे 0 से 8 तक जाने के लिए हमने 8 बार इस इंक्रीमेंट को कॉल करें राइट.
8 का ट्वाइस क्या होगा 16 एंड टोटल कॉस्ट हमने कितनी दी है 8 तक जाने के लिए 15 दी है. सो टोटल कॉस्ट इज लेस देन ट्वाइस द टोटल नंबर ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेशंस, दैट इज 15 लेस देन 16. 16 क्या है टोटल नंबर ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेशंस और 15 क्या है कॉस्ट है. सो टोटल कॉस्ट विल ऑलवेज बी लेस देन ट्वाइस द टोटल नंबर ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेशंस. सो नाउ इन दी वर्स्ट केस क्या है, जब एरे की सारी बिट्स हमें फ्लिप करनी पड़ रही है. लाइक जब हम, ये क्या है 7 है, जब हम 7 से 8 पे गए सो हमने एरे की सारी बिट्स को फ्लिप किया, राइट. सो जब एरे कंटेन्स ऑल वंस, इन दैट केस हमें सारी बिट्स को फ्लिप करना होगा, राइट. सो एंड कॉस्ट ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेशन क्या है, नंबर ऑफ बिट्स फ्लिप्ड. सो बेसिकली इन दिस केस कॉस्ट ऑफ वन इंक्रीमेंट ऑपरेशन कितनी हो गई. अगर हमारा k बिट का बाइनरी काउंटर है तो हमें k बिट्स फ्लिप करनी पड़ी, राइट. सो कॉस्ट ऑफ वन इंक्रीमेंट ऑपरेशन इन दिस केस, इन दी वर्स्ट केस जब एरे में सारे 1 है, इन दैट केस कॉस्ट ऑफ दिस इंक्रीमेंट ऑपरेशन इज k, बिकॉज हमें k बिट्स को फ्लिप करना पड़ा. सो अगर एक इंक्रीमेंट ऑपरेशन में मुझे k बिट्स को फ्लिप करना पड़ा, तो अगर मुझे n इंक्रीमेंट ऑपरेशंस करने पड़ गए, n इंक्रीमेंट ऑपरेशंस, इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी nk, विच इज ऑर्डर ऑफ nk, राइट. एक इंक्रीमेंट ऑपरेशन की कॉस्ट k बिट k हो गई इन दी वर्स्ट केस जब एरे कंटेन्स ऑल वंस. सो n इंक्रीमेंट ऑपरेशंस की कॉस्ट कितनी हो गई ऑर्डर ऑफ nk. बट दिस इज नॉट द राइट बाउंड. हम इससे और बेटर बाउंड और टाइट बाउंड अचीव कर सकते हैं यूजिंग द एग्रीगेट एनालिसिस. सो लेट्स सी हाउ. सो बेसिकली हमने अभी देखा है कि जब हम एक इंक्रीमेंट ऑपरेशन कर रहे हैं सो हर एक केस में ऐसा नहीं हो रहा कि आपकी सारी बिट्स फ्लिप कर रही हो, राइट. अगर हम ध्यान से देखें इस काउंटर को, सो हमारे काउंटर की जो A0 वाली बिट है, A0 वाली बिट क्या कितनी बारी फ्लिप कर रही है, A0 वाली बिट फ्लिप कर रही है एवरी अदर टाइम, राइट. A1 वाली बिट कितनी बारी फ्लिप कर रही है, A1 वाली बिट फ्लिप कर रही है एवरी सेकेंड टाइम, हर एक 2 के बाद ये चेंज हो रही है. A2 वाली बिट फ्लिप हो रही है एवरी 4th टाइम, हर एक 4 के बाद ये फ्लिप हो रही है, ये चेंज हो रही है, राइट. एंड A3 वाली बिट चेंज हो रही है एवरी 8th टाइम, हर एक 8 ऑपरेशंस के बाद ये चेंज हो रही है. सो बेसिकली नॉट एवरी बिट इज बीइंग फ्लिप्ड विद एवरी इंक्रीमेंट ऑपरेशन, राइट. So basically we can say A0 bit flips each time, A1 bit flips every second time, A2 bit flips every 4th time, and A3 bit flips every 8th time, right. So कॉस्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसको दोबारा देख लेते हैं. लेट्स से अगर हमारी n की वैल्यू है 4, अगर मुझे 4 तक काउंट करना है, राइट. 0 से लेके 4 तक अगर मुझे काउंट करना है, इन दैट केस हाउ मेनी बिट्स आर बीइंग फ्लिप्ड और व्हाट इज द कॉस्ट. सो इन दैट केस इज A4 तक, बेसिकली n की वैल्यू जब 4 है तो 4 तक हमारी A0 वाली बिट कितनी बारी फ्लिप हो रही है, A0 वाली बिट फ्लिप हो रही है 1, 2, 3 एंड 4 टाइम. अगर n की वैल्यू हमें 4 तक काउंट करना है, देन फॉर i इक्वल्स टू 0, 1, 2 एंड 3 बिट A of i flips n upon 2 to the power I times. तो इसको एग्जाम्पल से देखते हैं. A0 बिट कितनी बारी फ्लिप हो रही है, A0 बिट फ्लिप हो रही है, n की वैल्यू क्या है, हम 4 तक काउंट कर रहे हैं. सो 4 अपॉन 2 to the power 0 which is 1. So it flips 4 times. यही हमने देखा है. A0 बिट कितनी बारी फ्लिप हो रही है, 1, 2, 3 एंड 4.
सिमिलरली A1 बिट कितनी बारी फ्लिप हो रही है? A1 बिट फ्लिप हो रही है, इनकी वैल्यू है 4 अपॉन 2 to the power 1 which is 4 upon 2 which is 2 times. तो इसको एग्जाम्पल से देखते हैं. A1 बिट कितनी बारी फ्लिप हो रही है 4 तक? A1 बिट फ्लिप हो रही है, एक बार यहां पे हुई 1 टाइम और एक बार यहां पे हुई 2 टाइम्स, राइट? So A1 bit flips 2 times. Coming to A2 bit now. A2 bit flips 4 upon 2 to the power 2. So this is 4 upon 4. This is 1 time. So A2 bit हमारी 4 तक काउंटिंग में कितनी बारी फ्लिप हो रही है? A2 bit फ्लिप हो रही है एक ही बारी यहाँ पे, so 1 time. Now coming to A3 bit. A3 बिट हमारी कितनी बारी फ्लिप हो रही है? A3 बिट फ्लिप्स 4 upon 2 to the power 3 which is 8, so which is 0. So A3 बिट हमारी एक भी बारी फ्लिप नहीं हो रही till counting till 4. Now if I do the sum total of this to calculate total number of flips, so total number of flips हमारे कितने हुए? 4 plus 2 plus 1 plus 0 which is 7 times. और यही हमने कॉस्ट देखी थी यहां पे, that till 4 अगर हमें मुझे काउंट करना है then total cost that I have to pay is 7. अब इसको 5 का भी देख लेते हैं. सपोज हमारी n की वैल्यू 5 होती तो 4 तक हम 7 कॉस्ट तो पे कर ही रहे हैं, सिर्फ एक हमारी A0 वाली बिट जो है ये फ्लिप हुई 5 तक जाने में, तो एक एडिशनल कॉस्ट और ऐड हो गई विच इज 8. तो इसको इस फॉर्मूले से भी देख लेते हैं. अगर हमारी n की वैल्यू 5 होती है, इन केस द वैल्यू ऑफ n इज 5, इन दैट केस क्या होगा? 5 अपॉन 2 to the power 0 which is 1. सो A0 बिट वाली हमारी कितनी बारी फ्लिप कर रही है? 5 टाइम्स, अगर हम 5 तक काउंट कर रहे हैं. और यही हमने देखा है यहाँ पे, जब हम 5 तक काउंट कर रहे हैं तो सिर्फ हमारी ये A0 वाली बिट जो है ये 5 तक फ्लिप कर रही है, बाकी सारी जो है वो उतनी बारी फ्लिप कर रही है जितनी 4 तक काउंटिंग करने में थी. दैट इज वाई द कॉस्ट एडिशंस बाय 1 गिविंग अप टू 8. A1 बिट भी देख लेते हैं. अगर n की वैल्यू 5 है, सो 5 अपॉन 2 to the power 1, 2.5 का लोअर बाउंड क्या होगा? 5. 5 अपॉन 4, this will be 1. 5 upon 8, this will be 0. So 5 plus 2 plus 1 giving the 8. So 5 का count करने में the cost is 8. So can we say thus that the total number of flips is thus 4 plus 2 plus 1 plus 0. Which is n upon 2 to the power 0 for I equals to 0 plus n upon 2 to the power 1 for I equals to 1 plus n upon 2 to the power 2 for I equals to 2 plus n upon 2 to the power 3 for I equal to 3. For I equals to 3. So can we say that अगर हमें k bit बाइनरी काउंटर हम बना रहे हैं, तो summation from I equals to 0 to k minus 1, summation of all these values will give me the total number of flips, right? k क्या है यहाँ पे? k is the array length. ठीक है? So summation of all these will give me the total number of flips. Now can I say, so in this case this is summation I equals to 0. k की वैल्यू क्या है यहाँ पे? हमने 4 बिट बाइनरी काउंटर लिए, so 0 से 3 तक n upon 2 to the power I. In this case, right? So can I rewrite this equation as total number of flips
is thus summation I equals to 0 k minus 1 floor value of n upon 2 to the power I. Now can I write this as that this value is less than I equals to 0 till infinity. अगर हम k को रिप्लेस कर देते हैं with infinity, n को बाहर ले लेते हैं, this is 1 upon 2i और summation I equals to 0 infinity, n को हमने बाहर ले लिया, 1 upon 2i. Right? Now this value, this factor, this one, summation I equals to 0 till infinity 1 upon 2i, this value is equivalent to 2. So summation I equals to 0 till infinity 1 upon 2i, this value is equivalent to 2. So this is twice of n. इसको हमने रिप्लेस कर दिया with 2. ठीक है. अब बेसिकली टोटल नंबर ऑफ फ्लिप्स कह लो या टोटल कॉस्ट कह लो. कॉस्ट क्या है? जितने नंबर ऑफ फ्लिप्स हम कर रहे हैं, राइट. तो अभी हमने ऊपर क्या देखा था, दैट टोटल कॉस्ट इज लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेशंस वी आर डूइंग. सो अगर हम n इंक्रीमेंट ऑपरेशंस कर रहे हैं, सो टोटल कॉस्ट जो है वो हमारी लेस होगी देन ट्वाइस ऑफ n, राइट. सो वही चीज हमें यहाँ पे मिल गई कि ये हमारी टोटल कॉस्ट है, दिस इज लेस देन ट्वाइस ऑफ n. सो अगर हम 2 फैक्टर को हटा दें, देन दैट मीन्स हमारी टोटल कॉस्ट कह लो या टोटल टाइम कह लो इन डूइंग दीज इंक्रीमेंट ऑपरेशंस इज ऑर्डर ऑफ n. सो वर्स्ट केस टाइम, सो पहले जो हम कह रहे थे कि वर्स्ट केस में n इंक्रीमेंट ऑपरेशंस के लिए हमें ऑर्डर ऑफ n के टाइम लगेगा, विच इज नॉट द ट्रू वैल्यू. वर्स्ट केस में for doing n increment operations on an initially 0 counter is therefore order of n. ठीक है. So now n increment operations की cost हो गई order of n. टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हैं? n ऑपरेशंस हैं. सो द अमोर्टाइज्ड कॉस्ट और एग्रीगेट कॉस्ट पर ऑपरेशन इज ऑर्डर ऑफ 1 कॉस्ट पर ऑपरेशन. So this is how we will do the aggregate analysis for incrementing binary counter. If you like this video, then do like and share my video and subscribe my channel. Thank you.